सुधीर चौधरी जल्द ही डीडी न्यूज में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राजदीप सरदेसाई और पत्रकार सागरिका घोष जो है वो बौखलाई हुई दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष, और इस दौरान उन्होंने राज्यसभा में सुधीर चौधरी को लेकर के बात रखी है। उनका कहना है कि किस तरीके से सुधीर चौधरी जो है वो नफरती और झूठा एजेंडा चलाते हैं, और इसी तरीके से वो अब डीडी न्यूज में जाएंगे जहां पर इस तरीके का एजेंडा वो प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। तो भाई दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी इन दिनों लंदन के दौरे पर है, और यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सफेद कॉटन की साड़ी पहने हुए हैं, स्लीपर्स पहने हुए हैं, और इस वेशभूषा में वो मॉर्निंग वॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कुछ लोग इन्हें सराह रहे हैं उनकी सादगी और डिसिप्लिन लाइफ की वजह से, तो कुछ लोग जो है वो ममता बनर्जी के इस वीडियो को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम पत्रकार और टीएमसी की सांसद सागरिका घोष का। दरअसल आपको बता दें कि खुद सागरिका घोष ने इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आज संसद में मैंने सुधीर चौधरी और नफरत और झूठ की टीवी न्यूज फैक्ट्री को आड़े हाथों लिया है। सुनिए क्या कुछ सागरिका घोष ने राज्यसभा में कहा। So new media technologies are shrinking the world. India's unique identity as a vibrant democracy rooted in diversity and pluralism is an asset to the international order and needs to be projected on the global stage. This can only happen if our national broadcaster Doordarshan aspires to becoming truly world class. The network Russia Today is rapidly expanding and taking the message of Russia to the world. Networks like Al Jazeera are using government funding to project the Arab voice in the world. Doordarshan can play this role, but for this it needs top-class modern content and management. 7 decades after independence, India deserves a truly world-class public broadcaster as envisaged in the 1990 Prasar Bharati Act. Sadly though, sir, there are reports that Doordarshan has entered into a lucrative contract with a private individual who indulges in deeply divisive and incendiary and hate-mongering language on television, and who has faced 2 jail terms on criminal charges of extortion. It is highly disturbing to note that individuals with these terribly tainted records can become part of our proud national broadcaster. Sir, I've been a journalist for 35 years, and it's tragic to see the trivialization and character assassination and sensationalism that is today practiced in television news. Today almost 400 licensed news channels are competing for the lowest common denominator. 4 years ago, news channels ran a motivated campaign against a film actor. Today that film actor has been proven innocent. But what will those accusations, today all those accusations have been revealed as baseless, but who will give back to Ms. Riya Chakrabarti those years of humiliation that she endured at the hands of the media? The question arises, how can news media channels be made more responsible and accountable? Media owners will soon be called out on the floor of Parliament. Rogue anchors are a disgrace to journalism. We know that the business model of TV news is broken. So is this the new way to make profit, to unleash lies and more lies and fakery? Sir, I had the privilege of serving on the News Broadcasting Standards Authority, which was chaired by the distinguished jurist late Justice J.S. Verma. Justice Verma would say the media should be free and responsible, not irresponsible and censored. The NBSA lacked teeth and any statutory power. However, today, an independent media industry body that upholds global standards of professional broadcasting and journalistic fairness is urgently needed. So I would just like to say that today the model of advertising funded television news is rapidly imploding. The model is imploding. And therefore, it is for this reason that the media is engaging in character assassination, the media is engaging in a witch hunt
against individuals, and the media is engaging in hate mongering. Thank you. वही बात अगर हम सुधीर चौधरी की करें तो आपको बता दें कि सुधीर चौधरी जाने माने एंकर हैं। पहले वो जी न्यूज में थे, इसके बाद आज तक में, और अब खबर आ रही है कि वो जल्द ही डीडी न्यूज में दस्तक दे सकते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी की खुद की कंपनी एक्सपर्ट प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रसार भारती से डीडी न्यूज पर सालाना 15 करोड़ साथ में जीएसटी की लागत वाले एक शो के लिए बातचीत कर रही है, जैसा कि जानकारी मिली है। 11 मार्च को जारी प्रसार भारती बोर्ड के एजेंडे को लेकर के एक आंतरिक ज्ञापन के मुताबिक अगर इस सौदे को बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो एक्सपर्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 1 घंटे का शो बनाएगी, जो हफ्ते में 5 दिन तक प्रसारित होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि एक साल में 260 एपिसोड बनाए जाएंगे। फर्म से यह अपेक्षा भी है कि वो डीडी न्यूज स्टूडियो से शो के लिए एंकर को शोध, निर्माण और पटकथा में मदद करेगी। ब्रॉडकास्टर कार्यालय की 10वीं मंजिल पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत से रिनोवेशन और मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसका काम ठेके पर भी दे दिया गया है, यानी कि बकायदा एक ऑफिस भी तैयार किया जा रहा है जहां पर सुधीर चौधरी के शो को शूट किया जा सके। आपको बता दें कि ये जो कारगर सौदा है वो कई दौरों की बातचीत के बाद हुआ है और इसे सामान्य वित्तीय नियम यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स के नियम 194 के तहत मंजूरी दी गई है, जो विशेष परिस्थितियों में सीधे अनुबंध की अनुमति देता है। अधिकारियों के मुताबिक इसकी लागत केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा इसी तरीके के कार्यक्रमों के लिए तय की गई सीमा के भीतर है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस शो की बौद्धिक संपदा यानी कि IPR यानी कि अधिकार प्रसार भारती के पास ही रहेगा, लेकिन यह फैसला सिर्फ एक एंकर को लाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि एक बड़े बदलाव की ओर इशारा भी करता है। सरकार का इरादा है कि डीडी न्यूज को नए जमाने के मीडिया ट्रेंड्स के हिसाब से तैयार किया जाए। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा, इसे संपादकीय स्वतंत्रता व वित्तीय संतुलन के साथ कैसे लागू किया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वहीं आपको बता दें कि मीडिया इंडस्ट्री के कुछ जानकारों का कहना है कि सुधीर चौधरी के पिछले शो यानी कि जी न्यूज पर DNA और आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे और इन्होंने चैनल्स को अच्छी TRP और विज्ञापन भी दिलाए हैं। जो लोग इस चैनल्स के अंदरूनी आंकड़ों को जानते हैं उनके मुताबिक इन शो को हमेशा बढ़िया व्यूवरशिप मिली है और विज्ञापन दाताओं से प्रीमियम रेट भी हासिल हुए हैं। अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया जाए तो डीडी न्यूज पर भी इसी तरीके की सफलता दोहराई जा सकती है। वही बात अगर हम दूसरी खबर यानी कि ममता बनर्जी की करें तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो लंदन के मशहूर हाइड्रा पार्क में मॉर्निंग वॉक करती हुई नजर आई। बड़ी बात यह थी कि वो इस दौरान अपने पारंपरिक वेशभूषा यानी कि व्हाइट कलर की कॉटन की साड़ी और स्लीपर्स में नजर आई और इसी वेशभूषा के जरिए उन्होंने जॉगिंग भी की और उन्होंने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसी के साथ ही इस वीडियो में वो अपने साथ चल रहे लोगों से कहती हैं कि सब साथ चलो, पीछे कोई नहीं छूटना चाहिए। बता दें कि ममता बनर्जी ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट X पर शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल और ब्रिटेन के बीच सदियों पुराना रिश्ता है जिसकी जड़ें इतिहास, संस्कृति और वाणिज्य में है। कल जब हम लंदन पहुंचे तो हमने एक ऐसे शहर में कदम रखा जो कोलकाता की तरह ही अपने अतीत का भार ढोता है, जबकि वर्तमान की गतिशीलता को भी गले लगाता है। दिन में व्यवस्थाओं के शुरू होने से पहले मैंने लंदन की कलाकृत भव्यता के सार में खुद को डुबोने के लिए एक पल बिताया। आपको बता दें कि बंगाल में निवेश लाने के लिए आज ममता बनर्जी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, FICCI और WBIDC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में हिस्सा भी लेंगी। उनके साथ 15 सदस्यीय बिजनेस डेलीगेशन भी इस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।